Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Mahmood Amir and I will be teaching you biology. As you know that due to some technical issues in the previous lecture, there was some audio issue and I was not able to deliver the lecture properly. So I have included the slides of the previous lecture in this lecture too, so that we will quickly go through the concepts of the previous lecture and then we will continue with today's lecture. Okay. I hope today the audio quality will be good and you will be able to listen me or hear me properly. So first of all, we should know that what is osmosis. Okay, what is osmosis? As you know that we have been studying osmosis for quite a while now. That osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to a solution of higher solute concentration. मतलब ये है कि इसमें वाटर की मूवमेंट होगी ऐसे मीडियम से उस तरह के मीडियम की तरफ कि जिसके अंदर सल्यूट का कंटेंट कम हो. ठीक है, lesser solute content means which have more quantity of water as compared to salts and sugars. ठीक है, the water will move from such compartment or from such vessel to a solution in which the quantity of water is lesser as compared to that of previous one and the concentration of salts and sugar is more as compared to the previous solution. ठीक है, मतलब ये कहने का है कि आपने दो सॉल्यूशन बनाए, एक सॉल्यूशन में पानी कम और चीनी ज्यादा है और दूसरे सॉल्यूशन में चीनी कम और पानी ज्यादा है. ठीक है, so the water will move from such solution which have more concentration of water as compared to the salts to the solution less concentration of water as compared to salts. ठीक है, दो बर्तन लिए आपने, एक में पानी की क्वांटिटी कम है, एक में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है. ठीक है, एक में साल्ट्स की क्वांटिटी कम है, दूसरे में साल्ट्स की क्वांटिटी ज्यादा है. ठीक है, तो अब जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है ऑब्वियसली साल्ट्स की क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी. तो वाटर विल मूव फ्रॉम सच सॉल्यूशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन व्हिच हैव लेसर क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ साल्ट्स. ठीक है, कहते हैं जी टॉनिसिटी ऑस्मोसिस को समझने के लिए जो बेहतरीन टर्म है या जो बहुत बेसिक टर्म है या जो बेसिक चीज है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट a concept of tonicity. ठीक है, what is tonicity? Tonicity refers to the relative concentration of solutes in the solutions being compared. ठीक है, tonicity basically क्या करती है? Tonicity refers to the relative concentration of solutes in the solution being compared. सॉल्यूशंस आपने इन कंपैरिजन रखें. ठीक है, अब उनमें से किसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्ट्स ज्यादा डिसॉल्व हुए होंगे. ठीक है, जिसके अंदर नंबर ऑफ सॉल्ट्स ज्यादा डिसॉल्व हुए होंगे वो कंसंट्रेटेड होगा. ठीक है, या मोर टॉनिक होगा, और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो क्या होगा, लेस टॉनिक होगा या डाइल्यूट होगा. ठीक है, अच्छा, अब ये देखें, on the basis of tonicity we have basically three types of solution. The first is hypertonic solution. ठीक है, a hypertonic solution has relatively more solute, means as compared to the quantity of water the added salts or sugars will be in excess quantity. Okay, the second type is basically hypotonic solution and it has relatively less solute. Relatively less solute means the quantity of water as compared to the salts or sugar is more. ठीक है, is in excess. And isotonic solutions have equal concentrations of solutes. मतलब आपके पास इस तरह दो कंपार्टमेंट्स हैं, उनमें दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ शुगर और वाटर क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा. then it will be called as isotonic. ठीक है, अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से हमेशा वाटर मूव करता है, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से वाटर हमेशा मूव करता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ.
ठीक है। अब ये देखें, वी हैव अ कंसंट्रेटेड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑन आवर लेफ्ट एंड वी हैव अ डाइल्यूट और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑन आवर राइट। ठीक है, हमारे लेफ्ट पर जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, हमारे राइट पर जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन। बीच में हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो इंसर्ट करवाई हुई है। Now we know that water will move from region of higher concentration to the region of lower concentration. देखिए वाटर जो है वो राइट साइड पर ज्यादा है, लेफ्ट साइड पर कम है। तो राइट साइड से वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और कहां पर पहुंच जाएंगे, जहां पर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, एज अ रिजल्ट ये मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक दोनों का कंटेंट क्या हो जाए, इक्वलाइज ना हो जाए, दोनों बैलेंस आउट ना हो। अब ये देखें, जो राइट साइड है वहां पर ये जो लेवल है वाटर का वो फॉल कर गया, ये देखें यहाँ तक नीचे तक गिर गया। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके जब इस तरफ आए हैं तो इस साइड का वॉल्यूम ओवरऑल डिक्रीज हो गया और जो लेफ्ट साइड है उसका वॉल्यूम ओवरऑल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों क्या हो गए हैं, आइसोटोनिक नेचर के हो गए हैं, अब दोनों की क्वांटिटी सेम हो गई है। अब कोई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जो है वो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स आप एनिमल सेल में हम स्टडी करने लगे हैं कि एनिमल सेल जो है उसके अंदर वाटर बैलेंस लाजमी है, नेसेसरी है। ठीक है, तो उसके लिए अब हमें क्या क्या सेल्स को जो है वो डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच वी विल बी प्लेसिंग आवर एनिमल सेल विल बी आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है दैट इज बेसिकली सेम, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल इक्वल है। कहता है व्हेन एन एनिमल सेल सच एज रेड ब्लड सेल, फॉर एग्जांपल ये नीचे जो डायग्राम ड्रा की है उसमें हम ये कंसीडर करें कि ये जो सेल पड़ा हुआ है दैट इज बेसिकली अ रेड ब्लड सेल। ठीक है, ये जो रेड ब्लड सेल है आपके पास, इसको आप क्या करोगे, आपने एक आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लेस किया, मतलब रेड ब्लड सेल का अपना एनवायरनमेंट और आपने इसको जिस सॉल्यूशन में प्लेस किया उस सॉल्यूशन का एनवायरनमेंट दैट इज एग्जैक्टली अलाइक, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो कहता है द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो सेल का वॉल्यूम है ना, सेल स्वेल अप होगा ना सेल श्रिंक करेगा, मतलब ना सेल फूल के बड़ा होगा ना सेल श्रिंक होकर छोटा होगा। ठीक है, व्हाई, बिकॉज द रेट एट व्हिच वाटर इज एंटरिंग cell is equal to the rate at which water is going out। अब देखिए क्योंकि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है ना, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में ये होगा कि अगर वहीं से क्या करेगा, साथ ही वाटर जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जिस स्पीड से वाटर सेल के अंदर आएगा उसी स्पीड से वाटर सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आप अपनी क्लास के साथ दो दरवाजे अटैच करें। ठीक है, योर रूम हैज टू डोर्स, ओके, योर क्लासरूम हैज बेसिकली टू डोर्स। आप एक डोर से 5 स्टूडेंट्स को एंट्री करवाएं, दूसरे डोर से 5 स्टूडेंट्स का एग्जिट करवा दें एट द वेरी सेम टाइम। ठीक है, जैसे ही आपके पास एक डोर से स्टूडेंट्स एंटर होंगे, दूसरे डोर से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपके पास जो रेशो होगी वो सेम रहेगी। तो इसी तरह जितने वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर आते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर चले जाते हैं। तो आपके पास जो रेशो है वो क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम रहेगी, उसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो सेल विल नीदर श्रिंक अप नॉर स्वेल अप। जो सेकंड टाइप है हमारे पास दैट इज बेसिकली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है जी, आपके पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इज सच सॉल्यूशन व्हेन अ सेल इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वाटर enters and cell swells and may rupture like an overfilled balloon। ठीक है, कहता है अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा आपके पास कि सेल के अंदर जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर सॉल्ट्स की रेशो ज्यादा है, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके अंदर वाटर की रेशो ज्यादा है। ठीक है, तो हमें पता है वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड द सेल टुवर्ड्स इनसाइड। ठीक है, बाहर से पानी सेल के अंदर मूव करता रहेगा। ठीक है, ताकि वो उसको क्या कर सके, डाइल्यूट बना सके। तो वो इतना ज्यादा सेल के अंदर आ सकता है कि वो ओवरफिल्ड बैलून की तरह फट जाएगा। ठीक है, द सेल विल रप्चर। तो जो सेल है वो आपके पास अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, वो रप्चर हो जाएगा, यानी सेल मर जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड द थर्ड इज बेसिकली हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में बेसिकली आपके पास क्या होता है जी, हाइपरटोनिक में आपके पास ऐसा होगा, एन एनिमल सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन will lose water and will shrink in size। वो क्या करेगा, पानी को लूज करता रहेगा।
क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स बहुत ज्यादा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्वांटिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सेल जो है वो आपके पास क्या करेगा जी, सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट से वाटर को लूज करना शुरू कर देगा एंड इट विल कीप ऑन लूजिंग वाटर अंटिल इट विल बी श्रिंक, और श्रिंकेज की वजह से भी जो सेल है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि इन आइसोटोनिक एनवायरनमेंट द सेल कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन प्रॉपर्ली, बट इन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट अ सेल मस्ट हैव अ वे टू compensate for water loss or excess water gain, otherwise the cell will rupture and will not be able to perform its function properly, and if a large quantity of cells will not be able to perform their functions properly, then the body will not be able to work properly and it may cause death. So the organisms that are living in seawater must have a mechanism to compensate for excess water loss, and the organisms which are living in freshwater environment will must have a mechanism to compensate excess water gain, otherwise both of them will not be able to survive and will die, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने लिखा, so in hypotonic environment for example fresh water animal cells must have ways to prevent excessive entry of water, and in hypertonic environments for example sea water they must have ways to prevent excessive loss of water, ठीक है। सेल्स के पास दोनों तरीके होने चाहिए, एक्सेसिव वाटर एंट्री जो है उसको फ्रेश वाटर के अंदर रोकना है, ठीक है, मिनिमाइज करना है, और एक्सेसिव वाटर लॉस जो है उसको हमने क्या करना है, सी वाटर के अंदर हमने प्रिवेंट करना है, ठीक है, सो दैट द ऑर्गेनिज्म मे बी एबल टू लिव इन बोथ द एनवायरनमेंट्स। नाउ वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स इन प्लांट्स, अब पौधों के अंदर क्या इश्यूज आते हैं वाटर बैलेंसिंग, ठीक है, because water plant cells are slightly different as compared to animal cell due to the presence of cell wall, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं थी, प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल, तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स will be a little different as compared to animal cell. So water balance problems are somewhat different for plant cells because of their rigid cell walls, ठीक है, but they also face three situations, ठीक है, their water balancing issues will be a little different, but they will also be facing three types of situations. The first situation is hypotonic, just as we studied for animal cell. The second is isotonic, just as we studied for animal cell, and the third is hypertonic, ठीक है। Hypotonic means less concentration of solute, isotonic means same concentration of solute in and out of the cell, and hypertonic means the external environment will have excess solute concentration and the internal environment will have a little solute concentration. So first of all we will be studying hypotonic environment, and in hypotonic environment there is an important concept that is basically turgor or turgor pressure, okay, so you must highlight this concept or you must memorize it properly. The most plant cells live in hypotonic environment, that is there is low concentration of solutes in extracellular fluids than in cells. It explains that most of the plant cells, ठीक है, बहुत सारे पौधे जो हैं वो ऐसी इन्वायरमेंट में रहते हैं या ऐसी कंडीशंस में रहते हैं, जैसे अभी हमारे पास आम नॉर्मल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, अगर आप इनको देखें तो इनके पास वाटर की क्वांटिटी कम होती है और साल्ट्स और शुगर्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है। वाई? देखें, हमने पौधे को पानी दिया तो पौधे के पास सिर्फ उतना ही पानी है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर सनलाइट जो है या मून लाइट जो है वो कंटिन्यूसली फॉल कर रही है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा और जो शुगर्स वगैरह की एक्सेस है वो हो जाएगी। तो अब देखें इनसाइड द सेल देयर इज लिटिल वाटर एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का मतलब क्या है कि बाहर के एनवायरनमेंट में पानी ज्यादा है, साल्ट्स और शुगर्स कम है। क्यों? क्योंकि साल्ट्स और शुगर्स सेल के अंदर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो चीज जहां मैन्युफैक्चर होती है उसकी क्वांटिटी वहां ज्यादा होती है, ठीक है। इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग शुगर, तो शुगर की क्वांटिटी उस कंपनी के पास ज्यादा होगी या मेरे घर में ज्यादा होगी, ठीक है। जारी बात है, कारखाना है, कारखाने के पास हमेशा क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी तरह जो लीव्स है दैट आर बेसिकली द फैक्ट्रीज ऑफ फूड सिंथेसिस, ठीक है। तो आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट्स या शुगर्स है वो उनके पास ज्यादा होगी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कम होगी, तो क्या करेगा, एज अ रिजल्ट वाटर टेंड्स टू मूव फर्स्ट इनसाइड द सेल एंड देन इनसाइड वैक्यूल। तो फिर सेल क्या करेगा, पहले
वो जो वाटर है वो पहले सेल के अंदर आएगा। अब हमें पता है कि प्लांट सेल के पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। तो पहले पानी उसको एक्सेप्ट करेगा जी, सेल पानी को एक्सेप्ट करेगा, फिर जो एक्सेस वाटर होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब वाटर वैक्यूल ने गेन कर लिया, द वैक्यूल विल इंक्रीज इन साइज, cytoplasm presses firmly against the interior of the cell wall which expands a little। ये देखें अब क्या हुआ, वैक्यूल स्वेल अप हो गया ना, वैक्यूल स्वेल अप होने के बाद प्रेशर डेवलप करेगा, ठीक है। प्रेशर डेवलप करने से क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर बर्डन पड़ेगा और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के साथ अगेंस्ट पुश करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमें सेल लगेगा कि वो थोड़ा सा मोटा हो गया, थोड़ा सा स्वेल अप हो गया, ठीक है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सेल वॉल प्लांट सेल डू नॉट रप्चर बट इंस्टेड बिकम्स रिजिड। अब देखिए एनिमल सेल लेक्ड सेल वॉल, सो व्हेन एक्सेस वाटर एंटर द एनिमल सेल इट रप्चर्ड, ठीक है, वो बर्स्ट हो गया था, वो फट गया था, ठीक है। बट प्लांट सेल में क्या होगा कि सेल वॉल है, सेल वॉल इज वेरी हार्ड एंड वेरी टफ, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, लोहे का पाइप है, लोहे के पाइप में अगर पानी का प्रेशर बढ़ता भी रहे तो लोहे का पाइप डैमेज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई सॉफ्ट पाइप है या कोई शॉपिंग बैग है या कोई बलून है, अगर उसके अंदर वाटर का प्रेशर बढ़ेगा तो वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब सेल वॉल की वजह से जो एनिमल सेल है इंस्टेड ऑफ बर्स्टिंग इट विल बिकम रिजिड, वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। इन दिस कंडीशन द आउटवर्ड प्रेशर ऑन द सेल वॉल एक्सर्टेड बाय द इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो अब एज अ रिजल्ट जो प्रेशर डेवलप होगा एक्सटर्नल सेल वॉल के ऊपर इट इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। एंड द फिनोमेना इज नोन एज टर्गर, और इस फिनोमेना को, इस प्रोसीजर को, इस मेथड को इट इज कॉल्ड एज टर्गर, ठीक है। ये देखें क्या हुआ कि सेल पहले वाटर को एक्सेप्ट करेगा, व्हाई, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इनसाइड द सेल इज मोर एज कंपेयर्ड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर वो वाटर यहाँ पर सेल के अंदर रहने की बजाय वैक्यूल में ट्रांसफर होगा, वैक्यूल वाटर एक्सेप्ट करने के बाद स्वेल अप हो गया, स्वेल अप होने की वजह से वो क्या करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू सेल वॉल, and as you know cell wall is a hard and tough material, so it will not be able to burst, instead it will gain some pressure which will be called as turgor pressure, and when the cell will swell up and will be posing pressure on the external cell wall, it will be, this state of cell will be known as turgor. Now isotonic environment. What is isotonic environment? In isotonic environment, the net uptake of water is not enough to make the cell turgid and it is flaccid, loose, not firm. अब देखिए आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर सेल के अंदर इंटर होती है उतनी क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टाइम लूज कर देती है, ठीक है। तो जो सेल है वो प्रॉपर अपनी शेप मेंटेन नहीं रख पाता, ठीक है। सॉरी, शेप कह रहा हूँ, वो जिस हालत में होता है, जिस कंडीशन में होता है उसी में रहता है, स्वेल अप नहीं हो पाता, ठीक है। सो व्हेन द सेल विल नॉट बी एबल टू स्वेल अप इट विल बी कॉल्ड एज फ्लेसिड। फ्लेसिड मींस वो नर्म होगा, वो आप दबाओगे तो सॉफ्ट एंड स्क्विशी होगा, दब जाएगा, ठीक है। जस्ट एज यू कैन से दैट यू हैव इंसर्टेड अ लिटिल वाटर इन अ बैलून, गुब्बारे के अंदर थोड़ा सा पानी लिया, फिर वो एक बाउंसी बॉल सी बन जाती है, ठीक है, आप उसको दबा सकते हैं, दैट कंडीशन इज बेसिकली कॉल्ड एज फ्लेसिड, ठीक है। And the third is hypertonic environment. In hypertonic environment, a plant cell loses water and cytoplasm shrinks. कहता है हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में ये होता है कि जो प्लांट सेल है वो पानी को लूज करना चाहता है, ठीक है। When the water from the cell will keep on losing, the cell will shrink, ठीक है। And the shrinking of cytoplasm is basically called as plasmolysis, ठीक है। And the shrinking of cytoplasm is basically called as plasmolysis or breakdown of the cytoplasm भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। Plasmolyzed cell कौन सा होगा which has lost the water content, why, because that cell was placed in hypertonic environment, that hypertonic environment sucked out all the water from it and now the cell is not able to perform its function properly, okay. So basically this was our today's lecture, and if you have any question related to today's topic you can ask.
बेटा ऑस्मोसिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अच्छा रुके मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं। ये देखें, इधर देखें, बेसिकली ऑस्मोसिस की डेफिनेशन ये आपने क्या पढ़ी है, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन। लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर पानी ज्यादा है और चीनी बहुत कम है, ठीक है। जो चीनी है दैट इज बेसिकली सोल्यूट। देखें, अ सॉल्यूशन बेसिकली हैज टू थिंग्स, the first is called as solute which is present in lesser quantity and the second is called as solvent which is present in excessive quantity, ठीक है। तो अब मैं चीनी और पानी का सोल्यूशन बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हम चीनी कम लेते हैं और पानी ज्यादा लेते हैं, तो शुगर विल बी कॉल्ड एज अ सोल्यूट एंड द वाटर विल बी कॉल्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है। तो वाटर विल मूव फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन से वो कहाँ मूव करेगा, हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। तो इसको आप इस डायग्राम से क्लियरली समझ सकते हैं। देखें, एट द राइट साइड, ये जो राइट साइड है हमारी तरफ, ये जिसको मैं रेड से मार्क करने लगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, दिस पोर्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ऐसा सॉल्यूशन है व्हिच हैज लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन। देखें, these pink blocks are representing sugar and these white blocks are yellow blocks are blue blocks are representing water molecules. Now there is a little sugar as compared to the water molecules, so this solution will be called as a solution of lesser solute concentration, जिसके अंदर चीनी कम डिसॉल्व हुई है या जिसके अंदर साल्ट कम डिसॉल्व हुआ है, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट अगर आप देखें, जिसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। अब देखें, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स आपको कम नजर आएंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर वेरी लिटिल, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ओनली 11 वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीइंग रिप्रेजेंटेड है, व्हाइल द क्वांटिटी ऑफ शुगर इज इन एक्सेस, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है आपके पास, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। सो हमने पढ़ा वाटर विल मूव फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ लेसर सोल्यूट कंसंट्रेशन, यानी इस रेड वाले पोर्शन से वाटर कहाँ मूव करेगा, इस ब्लैक वाले पोर्शन की तरफ, ठीक है। तो अब आपके पास दिस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बेसिकली कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। अब ये वाटर की मूवमेंट तब तक होती रहेगी जब तक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड पर बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब ये देखें, इस तरफ और ये जो साथ दूसरा रेड वाला है इस तरफ, अब आपके पास देखें यहाँ पर वॉल्यूम राइज हो गया, ठीक है, और इधर वॉल्यूम फॉल हो गया, ठीक है। दिस राइज और फॉल ऑफ द वॉल्यूम इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट द वाटर हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टुवर्ड्स द सेकंड कंपार्टमेंट, ठीक है, और द वाटर हैज ट्रेवल्ड फ्रॉम अ solution of lesser solute concentration towards the solution of higher solute concentration. So this will be called as osmosis. But if you are not able to see the diagram clearly, you may switch to a better network, or I will be uploading this lecture on the YouTube shortly after this lecture, so you can understand this concept from there. Beta, that will be covered in the next lecture, and then we will be starting tissues along with it. Any other questions? क्लास है आप लोग? ओके जी, we will be terminating our class over here, and inshallah we will meet in the next lecture with a new topic. Until then, take care. Allah Hafiz.